Hello guys and welcome to Easy English with Sneha. Hope you guys are doing well in life. Before starting my today's video, I would like to discuss a very important topic with you guys that is stuck in my mind from a very long time, and that is kite flying. Guys, I have seen many people using kite string which is made by mixing the pounded glass to make a paste to sharpen it. Kite flying on the road or near the freeways are very dangerous, because if your kite accidentally lands on the road, it may cause serious accidents. If it strikes to vehicle, it may cause serious damage to the vehicle and personal injury. That is really dangerous. So according to me guys, what I think is kite flying must be banned. I have seen in Delhi the kite flying and the making of manja, the kite string, is banned. So I am totally in agree with this to ban kite flying. If you guys also think in the same way I think, please send your comments on my comment section. We will discuss this topic later on, and by reducing the risk of kite flying which may cause serious accidents. Guys, please, if you agree, please support me, and please, if you see anybody flying kite on the road or the freeways and where vehicles are going and the little kids are playing, please go and stop them, and uses of manja should be banned right away. That is really harmful. I have seen many dangerous accidents that have been caused by the manja only. So guys, kite flying is really risky. Please avoid it. Thank you guys. And now today we are going to start a very important topic, that is vocabulary. Our classes are also going on. This is our vocabulary class 3. Hope you guys have seen my last 2 videos and already learned the 20 words which I have shared with you. Today I have taken out some different way to teach you these 10 words. Hope you guys will enjoy and like it. Please don't forget to subscribe and give it a thumbs up. Let's start and begin with 10 words. Our first word is conflict. Conflict. Let's check out this image and please tell me, इसको देख के आपके माइंड में सबसे पहला वर्ड क्या स्ट्राइक करता है? Yes, conflict means झगड़ा, मतभेद. ये विचारों के हिसाब से होता है कि कोई चीज़ अगर मैं सही सोच रही हूँ, आप उस तरीके से नहीं सोच रहे हैं, तो ये विचारों के मतभेद को हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं. ये कॉन्फ्लिक्ट कई बार हम देखते हैं कि कोई चीज़ डिस्कस करते वक्त या किसी भी बड़े टॉपिक पे, या कभी आप ऑफिस वगैरह में देखते हैं जहाँ पे 2 ग्रुप्स होते हैं जिनके आइडियाज़ एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, वहाँ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट की एक सिचुएशन बनी रहती है. वी as a employee, we try to avoid this conflict, but conflict is very natural. When you have to prove yourself, conflict may arise. This is very natural. Check out the examples. He is in constant conflict with his authorities. होता है कई बार हम अपने कुछ चीज़ें, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, बट हमारे अथॉरिटीज़ उस तरीके से हमारा साथ नहीं दे रही होती है, तो हमेशा एक हमारी अथॉरिटी के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है कि नहीं, हम चाहते हैं ऐसे करो, वो चाहते नहीं वैसे करो. सो दिस इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन. सेकेंड एग्जाम्पल, हिज वर्ड्स आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद हिज डीड्स. मतलब कि जो वो कर रहा है और वो जो कह रहा है, इन दोनों बातों में बहुत अंतर है. सो देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट. Now the second word is legacy. Yes, check out the picture. Yes, it means संपदा, विरासत, जो आपको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन होती है. सो लेगेसी मीन्स विरासत, संपदा.
Examples: she left us with the legacy of $1 million. मतलब वो हमारे लिए करोड़ों की संपदा छोड़ के गई है. He left his children with the legacy of respect and love. That means जो हम आचरण अपने बच्चों को सिखाते हैं वो भी जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है. नॉट ओनली मोनेटरी टर्म्स बट ऑल्सो इन द टर्म्स ऑफ जो हम उनको आचरण सिखाते हैं, जो उनको बातें सिखाते हैं, वो भी हमारे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होती हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लेगेसी. हर आर्टिस्टिक लेगेसी लिव्स ऑन थ्रू हर चिल्ड्रन. मीन्स क्या होता है कि हम देखते हैं कि डॉक्टर का बच्चा हमेशा डॉक्टर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और जैसे जैसे उनकी जो टैलेंट होता है वो भी पास ऑन हो जाता है. जैसे कि अगर उसकी माँ बहुत अच्छी आर्टिस्ट है तो कुछ ना कुछ उसके बच्चे में भी वो इंटरेस्ट होगा, कहीं ना कहीं वो भी बहुत अच्छा आर्ट कर लेता होगा. सो ये भी लेगेसी है, वो भी ट्रांसफ़र हो रही है थ्रू जनरेशन टू जनरेशन. सो नाउ द थर्ड वर्ड इज़ रेग्रेट. रेग्रेट मीन्स होता है पछताना. जो पास्ट में हमने कुछ काम किए हैं जिनमें हमें पछताताप हो रहा है, जिसको लग रहा है कि हमें ये नहीं करना चाहिए था, हमने ये क्यों करा, सो उसको बोलते हैं रेग्रेट. प्लीज़ चेक आउट दिस इमेज, इससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी. सो इमेज से हेल्प हो जाती है थोड़ा सा हमें याद करने में. इफ़ यू डू दिस यू विल श्योरली रिग्रेट इट. मतलब अगर आप कुछ ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिग्रेट. आई हैवंट डन एनीथिंग विच आई हैव रिग्रेट. मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे मुझे रिग्रेट हो, पछताताप हो. इसे समटाइम्स रिपेंट भी कहते हैं, तो आप इसका सिनोनिम भी लिख लीजिए, इट्स रिपेंट. सो रिपेंट एंड रिग्रेट मीन्स पछताना, काम को ऐसा कुछ हमने किया है जिस पे कि हमको आगे चल के लग रहा है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था. फोर्थ वन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और कई बार आपने सुना होगा, बट फिर भी कई बार आप कंफ्यूज होते हैं इसके मीनिंग के लिए. द वर्ड इज़ वैनिश. यस, आपने ज़रूर वो ऐड देखा होगा इन विच ही सेज दाग गायब, रंग ब्राइटर, वाइट वाइटर. दैट इज़ वैनिश. वैनिश मीन्स होता है बिल्कुल गायब कर देना उस चीज़ को. जो भी दाग धब्बे होते हैं ना, उसको वो वैनिश गायब कर देता है. वैसे ही यहाँ पे आपको याद हो जाएगा कि वैनिश का मीनिंग होता है गायब होना, उसको सफ़ा कर देना, साफ़ कर देना. The rat vanished into the hole in the wall. Several species of animals has been vanished. ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जैसे कि डायनासोर्स, वो भी वैनिश हो गए. हालांकि इस चीज़ पे अभी भी एक कंट्रोवर्सी है कि सच में डायनासोर्स होते थे कि नहीं, बट हाँ, हमने तो पढ़ा ही है कि डायनासोर्स होते थे. तो अब डायनासोर्स नहीं है तो वो क्या हो गए, वैनिश हो गए. ऐसे बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जानवरों की जो कि वैनिश होती जा रही है. नाउ द फिफ्थ वन विच इज़ ऑफेंसिव. जब भी कभी कोई बात बहुत ही अपमानजनक हो या असामाजिक हो, उसको हम ऑफेंसिव कहते हैं. हिज वर्ड्स आर वेरी ऑफेंसिव. जो वो बोल रहा है वो थोड़ा ऑफेंसिव है, मतलब कि वो सही बात नहीं बोल रहा है, वो समाज के हिसाब से थोड़ा सा गलत बोल रहा है, जो कि एक समाज में इस तरीके से बोलना शिष्टाचार के खिलाफ है. तो उस चीज़ को हम बोलते ऑफेंसिव. We should not use offensive language with our elders and seniors. हमें अपने सीनियर्स और एल्डर्स के साथ अपमानजनक बातें नहीं करनी चाहिए. Find your attitude very offensive. कभी कभी कुछ लोग ना बहुत ही ऐसे एटीट्यूड में रहते हैं कि कुछ भी उनसे छोटी सी बात भी आप पूछ लो, आपने बहुत प्यार से पूछा पर उन्होंने बहुत बदतमीज़ी से जवाब दिया, उसको ऑफेंसिव कहते हैं. You acted in an offensive manner. You can say that. जगह अगर आपसे कोई बदतमीज़ से बात कर रहा है, you can say that person like you acted in a very offensive manner. जो आप बात बोल रहे हो वो बहुत ही बदतमीज़ी से है, मतलब it's not good, it's offensive. Our sixth word is anxiety.
इसे फटीग भी कहते हैं, फटीग एंड एंजाइटी। इसका मतलब होता है थकावट, जो हमको कई तरीके की होती है। हम कहते हैं क्रोनिक फटीग, विच मीन्स अत्यधिक क्रोनिक फटीग, बहुत ज़्यादा हम थके हुए हैं, जिसमें कि होता है हमारे ऊपर मेंटली प्रेशर। काम कर कर के हम एक सिमिलर पोजीशन में बैठे बैठे हम बहुत देर से लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो इट्स क्रोनिक फटीग हो जाती है हमको। ठीक है, ऐसे बाइपोलर फटीग होती है। बाइपोलर फटीग जो होती है जिसमें कि इंसान जो होता है कभी बहुत अच्छी तरीके से बात करता है, कभी एकदम से डल पड़ जाता है। एक डुअल पर्सनैलिटी सिंड्रोम टाइप ऑफ डिसीज़ होती है कि लाइक क्लिनिकल डिप्रेशन, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमें किसी चीज़ में फिर इंटरेस्ट नहीं आता है। सो एक्चुअली दिस इज़ ए डिसीज़ काइंड ऑफ थिंग। ये हम जब कहते हैं कि हम बहुत एंजाइटी हो रही है हमें, मीन्स हम बहुत ही क्रोनिक डिसीज़ से या क्रोनिक फटीग से गुजर रहे हैं, मीन्स आप कोई काम करते करते या तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को कर कर के आपने अपना बहुत टाइम उस चीज़ में दे दिया है, तो आप अब इंटरेस्ट खो बैठे हैं उस चीज़ में, और अभी भी आपको करना पड़ रहा है। इस वजह से आपको एक मेंटली प्रेशर है, और जिसकी वजह से आप कुछ भी नहीं सही से कर पा रहे हैं। सो इसको फटीग या एंजाइटी कहते हैं। गाइस, ये आपको पिक्टोरल फॉर्म में मैं आपको वोकैबुलरी सिखा रही हूँ। आपको ये बहुत ही जल्दी जल्दी याद भी हो रहे होंगे, क्योंकि मुझे इतना पता है कि पिक्चर फॉर्म में अगर कोई काम करते हैं तो वो माइंड बहुत जल्दी रीड कर लेता है, उसे बहुत जल्दी रिमेंबर भी कर लेता है। इसलिए मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूँगी कि जब मैं स्कूल में थी तो हमारे जो हिंदी टीचर थे वो कुछ टाइम के लिए छुट्टी पर चले गए, तो उनकी जगह पर एक गेस्ट फैकल्टी वहाँ पर आए। तो उन्होंने क्या किया कि जब वो हमें हिंदी पढ़ा रहे थे तो हमें वो ड्रॉ कर कर के हमें समझा रहे थे हिंदी के जो हमारे सब्जेक्ट्स में जो भी स्टोरीज़ होती थी उस टाइम हिंदी में। तो हम उस टाइम बहुत हंस रहे थे कि अरे हिंदी में भी डायग्राम्स होते हैं क्या सर, आप ये क्या कर रहे हो। बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे थे उनका। बट जैसे जैसे टाइम पास होता चला गया हमको वो स्टोरीज़ बिल्कुल याद होती चली, क्योंकि वो जब भी उसको पिक्टोरल फॉर्म में हमें बता रहे थे तो दैट वाज वेरी इजी टू ग्रैस्प दैट टाइम। क्योंकि हम हिंदी पे हम वी वर मैथ स्टूडेंट, तो हम हिंदी पे इतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे कि इतनी ज़्यादा उसमें भी कोर्स बहुत ज़्यादा था, हिंदी में भी हमें कवर अप तो करना ही था। बट जो कि उन्होंने इतनी अच्छे तरीके से हमें पिक्टोरल फॉर्म में उसको डिपिक्ट करके बताया, दैट वाज ऑल टाइम रिमेंबर्ड। हमें हिंदी द्वारा वो जैसे जैसे हम रिवाइज़ भी कर रहे थे ना, तो हमारे दिमाग में वो इमेजेस आ रही थी और बहुत जल्दी हम उस चीज़ को रिकॉल कर पा रहे थे। सो मैंने ये सोचा कि इस बार मैं आपको थोड़ा पिक्टोरल फॉर्म में आपको वोकैबुलरी सिखाऊँ, मे बी आपको याद हो जाए जल्दी से, बिकॉज ये वोकैबुलरी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर होती है। तो ये एक सिंपल सा एक छोटा सा एक मेरा एक टेस्ट था कि हो सकता है आपको पसंद आए। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसी फॉर्म में बताऊँ। 7th है मोलेस्टेशन। मोलेस्टेशन स्पेशली जो होता है गर्ल्स के लिए और किड्स के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है छेड़छाड़ करना। मतलब जैसे कि छोटे बच्चों को कई बार हम मोलेस्ट करते हैं कि अरे चल अपना लंच बॉक्स निकाल, या कुछ भी ऐसे छोटे बच्चों को तंग करते हैं हम। और जो हम गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स को तो मोस्ट ऑफ द टाइम मोलेस्टेशन फेस करना पड़ता है। अगर रेप एंड चाइल्ड मोलेस्टेशन आर टेरिबल क्राइम। 8th एम्बिग्विटी, वेगनेस। कभी हम कुछ बोलते हैं और उसके डुअल मीनिंग निकलते हैं, तो उसको क्लैरिटी नहीं मिलती सामने वाले को कि आखिर मैं कहना क्या चाह रही थी। तो इस चीज़ को बोलते हैं एम्बिग्विटी। हिज रिपोर्ट वॉज फुल ऑफ एम्बिग्विटी डिटेल्स। मुझे उसमें इतनी ज़्यादा आसपास चीज़ें थी कि हमें क्लियर ही नहीं हो रहा था। जो टॉपिक था जिसमें हमको क्लैरिटी चाहिए थी, बट उस टॉपिक में हम और ज़्यादा उलझ गए, हमें वो समझ में नहीं आया, बल्कि हम उसमें और ज़्यादा ही पीछे चले गए। आवर सेकेंड लास्ट वर्ड इज़ इनेट, जन्मजात। कुछ क्वालिटीज़ हमारे अंदर ना जन्मजात से ही होती है, हम कई बार कहते भी ना ये तो बचपन से ही है मेरे अंदर। सो उसको बोलते हैं इनेट।
अमेरिकन्स हैव इनेट सेंस ऑफ फेयरनेस। यहाँ पे फेयरनेस का मतलब उनके गोरेपन से नहीं है, बट फेयरनेस का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ मेकिंग डिसीजंस विच आर फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। मीन्स उसमें कम से कम गलतियाँ हैं, बायस नहीं है, मतलब हमने किसी का पक्षपात नहीं किया है, हमने जो जजमेंट दिया है वो बहुत ही सटीक है, क्लियर है, जिससे सब लोग सहमत हैं। यू ऑब्वियसली हैव अ इनेट सेंस ऑफ प्लेइंग म्यूज़िक, जो जन्मजात है, क्योंकि तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा भी सिंगर हैं, तो मम्मी भी सिंगर है, तो ऑब्वियसली तुम्हारे अंदर एक सेंस ऑफ म्यूज़िक, जो आपके अंदर टैलेंट है, जो कि जन्मजात है, क्योंकि आप बचपन से उसको देख रहे हैं। ही नेवर लॉस्ट हिज इनेट गुडनेस। आवर लास्ट वर्ड इज़ हिपोक्रेट, जिसका कि मतलब होता है पाखंडी, हिपोक्रेसी। इमेज देख के आपको पता चल ही गया होगा, जो लोग मुखौटा लगा के बात करते हैं, मतलब सामने से तो वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, पीछे से वो छुरा लेके घूमते हैं, इसको कहते हैं हिपोक्रेट, और इस पूरे बिहेवियर को हिपोक्रेसी कहते हैं। पीपल नाउ नो दैट ही इज़ अ हिपोक्रेट। लोगों को समझ में आ गया है कि वो एक पाखंडी इंसान है। सो पीपल आर नॉट रेडी टू ट्रस्ट हिम अगेन। तो अब वो उस पर दोबारा भरोसा करने के लिए रेडी नहीं है। सो गाइस, ये थे आज के 10 वर्ड्स। आपको ये वर्ड्स समझ आ गए, आपको पिक्टोरल फॉर्म में मैंने डिपिक्ट किया, जिससे कि आपको मेमोराइज़ करने में भी इजी हो गया। सो गाइस, आपको ये क्लास 3 कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना, और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वी विल मीट अगेन टुमारो।